Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Agyan Timirandhasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapad Kamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagar Jatam Sahagad Raghunathamitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagad Lalita Shri Vishakhanitanscha He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapte Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpitarobhyascha Kripa Sindhubhyev cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य जो साप्ताहिक भगवत गीता कथा है उसमें बहुत बहुत स्वागत है।
आप सभी भक्तगणों को मेरा बहुत बहुत नमन, क्योंकि रविवार को जब सब लोग अपने अपने नित्य कामों में लगे हुए हैं, आप लोग अलग अलग जगह से ज्वाइन करते हैं। तो हम अभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। कीर्तन के तत्पश्चात फिर हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे, है ना, जैसे हमारा रविवार को होता है। तो सब लोग कीर्तन के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे कीर्तन करिए हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे
Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Bolo Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Vraj Jane Ranjana Yamuna Tiravanachari. Yashodanandana Ranjana Yamuna Tiravanachari. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Jaya Radha Parthati 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 Jaya Radha Parthati. Jaya Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannath Jaya Baladeva Subhadra. Jagannath Swami Nayan Patrigami Bhava Tume. Jagannath Swami Patrigami Nayan Patrigami Bhava Tume. Jaya Radha Shyam Sundar Jaya Radha Shyam Sundar Jaya Radha Shyam Sundar Jaya Radha Shyam Sundar Shyam Sundar Jaya Radha Shyam Sundar Jaya Radha Shyam Sundar. Oh Radhe 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 Jaya Radhe 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 Jaya Radhe Radhe. Gaurani Thai Jaya Gaurani Thai Gaurani Thai Jaya Gaurani Thai Gaurani Jaya Gaurani Thai Gaurani Thai Gaurani Thai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev
गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आनंद आया आप लोगों को? जोरदार आनंद। किस चीज में? कीर्तन में। चलिए, तो हम लोग जो है बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। किसमें? अब हम लोग जाएंगे भगवत गीता के श्लोकों में कूदेंगे, जिसके लिए हम आपकी कथा शुरू किए। आज अभी क्या स्थिति है, तो चलते हैं द्वापर युग में। महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में चलते हैं, और कुरुक्षेत्र में इस समय क्या है, भगवान और अर्जुन दोनों आमने सामने खड़े हैं, और अर्जुन के सामने और भी लोग खड़े हैं जो उनके परिवार वाले लोग हैं। और भगवान जो है अर्जुन से कहा है भगवान कृष्ण ने कि देखो देखो इन कुरुओं को देखो, है ना, इन कुरुओं को देखो। और अर्जुन ने उन कुरुओं में देखा किसको? अपने मामाओं को, और जो है चाचाओं को, ताऊओं को, भतीजों को, है ना, नातियों को, पनातियों को, बहुत लोगों को देखा उसने। अर्जुन ने जब सबको देखा तो देख करके, और साथ में अपने मित्रों को देखा, मित्र गणों को देखा, तो देख करके उसके हृदय में बहुत बड़ी दया पैदा हो गई। उसको पता था कि ये जो युद्ध है वो साधारण युद्ध नहीं है, ये भयंकर युद्ध होने वाला है। और इस युद्ध में जितने लोग हैं, जो लोग आए हुए हैं, वो उनमें बहुत से लोग मारे जाने वाले। उसको अंदर से एहसास था इस चीज का। इस कारण से वो करुणा से अभिभूत हो जाता है, और करुणा से अभिभूत होकर के भगवान कृष्ण से कहता है कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, और मेरा गांडीव धनुष मुझसे सरका जा रहा है, मुझे मेरा इंद्रियां, मेरी जिह्वा, मेरे होंठ सूखे जा रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो है यहां तक हमने समझा। और आज क्या अर्जुन बोलता है वो देखते हैं, ठीक है। अर्जुन आज कहता है 1.30 श्लोक में कहता है, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कहता है न च शक्न्यो, यानी कहता है शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। कहता मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हो रहा हूं। यानी वो इतना ज्यादा उसका शरीर कंपन हो रहा है, क्यों कह रहा है कि अब मैं बहुत ज्यादा असमर्थ हो रहा हूं, मैं अपने आप को भुला रहा हूं, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। बहुत परेशान है अर्जुन। वो कह रहा है कि मैं अब यहाँ अधिक खड़ा नहीं रह पा रहा। क्यों अधिक खड़ा नहीं रह पा रहा? क्योंकि मैं जो है इन लोगों को देख रहा हूं, और मुझे सामने केवल और केवल मृत्यु और खून ही खून नजर आ रहा है। और किसका खून नजर आ रहा है? अपनों का खून नजर आ रहा है। अर्जुन जो है बिल्कुल इस तरह से व्याकुल हो रहा है। इसलिए क्योंकि उसको ये महसूस होता है कि इसमें जो भी दिख रहा है उसको आगे भविष्य वो केवल और केवल ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा है, जिसको वो अमंगल बोल रहा है। अमंगल कब होता है? जैसे कभी ऐसा होता ना कि आपको लगता है अरे ये तो अमंगल चल रहा है। कैसे अमंगल? कि अगर कुछ भी सही नहीं चल रहा, लोग जो है जिसको देखो वही मतलब लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, फसाद कर रहा है घर में रह करके, तो आप कहते हैं ये तो अमंगल के कारण है ना, ये अमंगल के कारण आपको महसूस होने लगते हैं। तो वैसे ही अर्जुन को इस समय क्या दिख रहा है? अमंगल के कारण दिख रहा है। और वो जो है इतना ही नहीं, वो पूरा उसका सर में जैसे सच में क्या हो रहा है, उसका सर ऐसे चक्कर कर रहा है, वो गोल गोल सर ना ऐसे चकरा रहा है। क्यों? कभी कभी आप देखिए क्या होता है, जैसे अगर आप अपनों का खून देख लें, है ना, तो क्या होता है अपनों खून देखने पे थोड़ा सा जो सर चक्कर होने लगता है ना, घबराहट होने लगती है, अंदर से गंदा फील होने लगता है। ये जो है अर्जुन के साथ अभी हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसका खून को रियलाइज कर पा रहा है। कैसे रियलाइज कर पा रहा है? उसको लग रहा है कि अगर यहाँ पर युद्ध हुआ तो ये जरूर होगा। तो आखिर तरह ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अर्जुन अधैर्य में पड़ गया है, उसका धैर्य खत्म हो गया। कह रहा है अब मैं अधिक असमर्थ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसका धैर्य सारा जा चुका है। वो जो है उसके मन में क्या आ गया? दुर्बलता आ गई है, और उसको ये भूल गया है, आत्मविस्मृत हो गया है कि वो एक्चुअली में कौन है। वो एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय बिना युद्ध किए तो नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि अगर वो बिना युद्ध किए नहीं रह सकता,
तो और वो क्या हो रहा है, जब सामने युद्ध करने का टाइम आया तो समय उसके हाथ पैर कांपने लगे। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने स्वयं को भूल गया, आत्मविस्मृत हो गई है। तो व्यक्ति स्वयं को कब भूलता है, चलिए हम लोग जानते हैं। व्यक्ति स्वयं को कब भूलता है, उस वक्त भूलता है जब उसका भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति ज्यादा बढ़ जाती है ना, तब वो ऐसी स्थिति में पड़ जाता है। और अगर भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति बढ़ गई तब क्या होगा, तो वो केवल स्वयं को भूल गया, उन्हीं के साथ जुड़ने का प्रयास करने लगता है। जैसे अर्जुन इस समय कह रहा है, अगर मैं जीत भी गया तो क्या फायदा, अगर मैं जीत गया तो भी एक समय ऐसा आएगा जब सब मार जाएंगे तो मैं बैठ करके अकेले क्या करूंगा, है ना। तो वो इस समय क्या हो रहा है, उसको भौतिक वस्तुओं के प्रति वो बहुत ज्यादा आसक्त हो रहा है, बहुत आसक्ति आ रही है, और इस कारण वो इस स्थिति में पड़ गया है ना। तो जो है इसमें भागवतम, श्रीमद् भागवतम में इसका एक बहुत बढ़िया श्लोक है कि आखिरकार क्या होता है जब व्यक्ति जो है भौतिक स्थिति पड़ करके दुख का, और वो जब भौतिक स्थिति पड़ जाता है तो वो दुख का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि वो अपने संबंधियों को ही सब कुछ मानने लगता है, भगवान को वो भूलने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में कौन सा श्लोक ऐसा है जिस बात को बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि असंतुलन कैसे हो रहा है उसके हृदय में। ठीक है, तो कहते हैं भागवतम में, देखिए ये है 11.2.37, प्रभा जी ने इसका जो है जो व्याख्या अपने उन्होंने तात्पर्य दिया है उसमें इसका उदाहरण दिया है। भयम द्वितीया विनिवेशतस्या दिशाद पेतस्य विपर्ययो स्मृतिमिति तन्मायया तो बुद्ध्या विजेतम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। क्या कहते हैं, भयम द्वितीया अविनिवेशतः, मतलब क्या होता है, द्वितीय मतलब भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में, है ना, यह है द्वितीय। यानी अगर भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में कोई व्यक्ति, लोग लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, अन्य क्या है, अन्य वस्तु यानी भगवान के अतिरिक्त, तो भय पैदा हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि भगवान की जो बहिरंगा माया शक्ति है उसमें अगर कोई लीन होकर के भौतिक शरीर के रूप में अपने आप को गलत तरीके से पहचानता है कि ये मैं शरीर हूं और इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो मेरे संबंधी हैं, और भगवान को भूल गया तो भय पैदा होगा। क्यों? क्योंकि जब इस शरीर से जुड़े हुए लोगों को हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि शरीर से जुड़े लोग तो सब कुछ टेम्परेरी है ना, आज नहीं तो कल मरेंगे। अगर आज मान लीजिए वो युद्ध में नहीं मरते अर्जुन के हाथों, तो क्या वो अमर थे? उनको तो मरना ही था। तो जो जिस दुख से वो आज बचना चाह रहा था उस दुख से तो कल भी जो है नहीं बचेगा। बिल्कुल सीधा सा केस है कि नहीं, यानी कभी ना कभी तो वो दुख जरूर आएगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम आज ही मार डालो हम आपस की बात करें, लेकिन अर्जुन भगवान के आदेश से वहां खड़ा था, है ना। तो जब भगवान के आदेश से अगर अर्जुन वहां खड़ा था तो मतलब क्या है कि उसको वही करना चाहिए था जो जो भगवान ने उसको आदेश दिया, है ना। तो जो है कहते हैं कि इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है तो भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। अच्छा, हमारी स्थिति क्या है, क्या हम मालिक हैं कि दास हैं? हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम मालिक हैं तो किस चीज के मालिक हैं? अब जरा जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो है आज आप लोग जो बड़े ध्यानपूर्वक जो सुन रहे हैं उनमें से आप ये बताइए कि हम किस चीज के, अगर हम क्या हम मालिक हैं? सब लोग आंसर करिए, क्या हम मालिक हैं कि दास हैं? असली बोलिएगा। आप देखिए कई लोग बोलेंगे मैं इस घर का मालिक हूं, है ना। तो अगर मैं इस घर का मालिक हूं मतलब क्या हुआ कि कौन इस घर का मालिक है और कौन दास है? एक्चुअली में असली मालिक कौन है? ये सब मेरे प्रश्न है ना। तो राधा माता जी कह रही हम दास हैं, चेतन बाबू कह रहे हम दास हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, हम लोग दास हैं, मालिक नहीं। क्यों? क्योंकि जो मालिक होता है ना उसके कंट्रोल में चीजें होती हैं। दास के कंट्रोल में क्या होता है? हमारे कंट्रोल में क्या है ना, जो हम अपने आप को मालिक बोले? हमारे कंट्रोल में कुछ भी है क्या जो हम अपने आप को मालिक बोल सकते हैं? अरे नहीं, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं प्रभु माता जी। हमारे कंट्रोल में तो खाना भी नहीं है। यानी मालिक कौन हुआ? कृष्णा, केवल और केवल लॉर्ड कृष्णा। सही बात गायत्री माता जी,
केवल केवल कृष्णा, बिल्कुल राधा माता जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, केवल और केवल कृष्णा मालिक है। किस चीज का? कि हम दास हैं, वो मालिक हैं। और अगर ये घर भी है तो फिर ये घर किसका है बताइए? आप ये कहेंगे क्या ये घर कृष्णा का है? झूठ मत बोलिए। तो कहेंगे क्या घर कृष्णा का है? बस ये सही, यही सच है, ये घर कृष्णा का है। लेकिन तो आप क्या कर रहे हैं इस घर में फिर? चलिए मेरा अगला प्रश्न बताइए, अगर ये घर कृष्णा का तो अगर आप जिस घर में रहते हो कृष्णा का है, तो आप घर में क्या कर रहे हैं? बताइए बताइए। यानी अगर ये घर कृष्णा का है तो आप घर में क्या कर रहे हैं? यानी हम भगवान के घर की रक्षा कर रहे हैं, है ना? भगवान के घर की सुरक्षा कर रहे हैं। भगवान अपने घर की रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन इस समय उन्होंने मुझे काम असाइन किया है। मुझे बोला इसको साफ सुथरा रखो, इससे मेरी भक्ति करो, इससे मेरे भक्तों को बुलाओ और यहाँ पर सबको प्रसाद बांटो, यहाँ पे सबको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, सब कुछ करो वैष्णवों को, है ना? यहाँ पे दारू मटन चिकन मत करो। यहाँ पर मेरा घर है और मुझे तो माखन पसंद है, मैं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम लेता हूँ, मुझे तो ये पसंद है। अरे अपने आप को दास, अपने आप को मालिक मान के क्या फायदा? इसलिए कहते हैं तो भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। तुम भूल गए हो बेटा कि तुम कौन हो, तुम दास हो, मालिक नहीं हो। अगर मालिक मान बैठे तो ऐसे मोह में पड़े रहोगे और ये भयपूर्ण दशा हमेशा तुमको प्रभावित करती रहेगी। ये भयपूर्ण दशा में बने रहोगे, कभी किसी चीज का भय, कभी किसी चीज का भय। सोचिए क्या नाम से जो, तो इसीलिए क्या कहते हैं, अगर आप मान लीजिए एक, अगर सोचिए कोई कहता है मेरे नौकरी जाने का भय है, अच्छा तो कितने साल नौकरी चलेगी? ज्यादा 10 साल, 15 साल बाद खुद ही रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होकर नौकरी चली जाएगी, है ना? अरे जान जाने का डर है, अच्छा कितने दिन जान बचा रहेगा? तो जो है, तो हमें इस समय जो हमें ये उम्र मिली है, जो एज हमारे पास हाथ में है, उसका क्या करें? उसको हम ऐसा क्या करें कि ये जो उम्र है ये सच में एक ऐसी दिशा में लग जाए जहां पर क्या हो, हमारा विकास केवल और केवल आध्यात्मिक दिशा में हो, जो भौतिक दिशा को स्वयं कवर कर लेता है। तो भय स्थिति का बात है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं। इस समय अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन किस स्थिति में पड़ा हुआ है? अर्जुन भय में आ गया। क्यों? क्योंकि वो भूल गया है कि वो यहाँ अपने लिए नहीं खड़ा, तो यहाँ भगवान के आदेश के लिए खड़ा है। ये भूल चुका है वो अर्जुन। अगर वो अपने लिए खड़ा होता तो एक बात दूसरी थी, अगर अपने लिए स्वयं के लिए खड़ा होता तो एक बात दूसरी थी कि स्वयं के लिए खड़ा है और आया युद्ध करने के लिए, लेकिन वो भगवान के आदेश के अनुसार खड़ा था। तो हमें क्या करना है? भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? तो इसमें इस श्लोक में जो बोले ना रूपा जी, देखिए श्लोक में फिर से पहुंचते हैं, कहते हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, है ना? तो जो ये ऐसी भय की स्थिति जो असंतुलन आया है, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो शत्रु पर विजय पाकर भी जो है क्या कहते हैं, जो भौतिक परिस्थिति में ग्रस्त रहते हैं, भौतिक स्थितियों में ग्रस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को क्या दिख रहा था कि इवन तो मैं अगर विजय प्राप्त भी कर लूंगा तो भी मैं दुखी रहूंगा, उसको ऐसा दिख रहा था। ऐसा कैसे? कभी कभी आपको लगता होगा ना कि जो है अरे मैं तो जो है मतलब अगर मुझे नौकरी मिल भी गई तो ये नौकरी तो मेरी कहाँ पर है? मेरी नौकरी तो मुंबई में रहेगी, तो वहां पे तो घर भी सस्ते नहीं है, बहुत महंगे घर है, वहां ट्रैफिक भी बहुत है, वहां तो मतलब लोकल ट्रेन भी बहुत भरी रहती है। तो वो जो सुख है, यानी जो नौकरी पाने का जो सुख है, वो क्या होगा? वो सुख एक्चुअली दुख का कारण दिख रहा है ना? वो सुख दुख का कारण दिख रहा है। ऐसे ही आप सोचिए, आपने बोला हाँ ये बहुत लोगों में पार्टी देना चाहता हूं, मैं 100 लोगों को इन्वाइट कर लेता हूं क्योंकि मेरा बर्थडे में 100 लोग इन्वाइट करेंगे, लेकिन वो 100 लोगों के आने का एक सुख होगा, लेकिन उसके साथ क्या है? 100 लोगों को खाना खिलाना है, उनकी व्यवस्था करना है। आप तो उस सुख से क्या होगा? एक कष्ट पैदा हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जब हमारा वो सुख की फीलिंग ज्यादा होती है तो हम ये कष्ट को सह लेते हैं। देखिए ना, कभी कभी आप अपने बच्चों के बर्थडे में बहुत से लोगों को इन्वाइट कर लेते हैं और उनको इन्वाइट करके लोगों को लगातार क्या देते हैं? आप खाओ, और उस खूब पसीना बह रहा है, आपका परोसने में पसीना बह रहा है। जैसे हम लोग क्या है संडे फीस्ट प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर अनंत नगर में अपने सेंटर में, तो वहां पर क्या है
प्रोग्राम होता है, मेहनत पड़ती है, सारी माताएं खूब मिल बांट के बना के लेके आती हैं और सभी घर से प्रसादम आता है और सबको परोसना होता है, इतने लोगों को जाना, ये करना, थाली धुलना, अरे बहुत कुछ होता है। लेकिन वो सब कष्ट क्या है, भगवान के लिए कारण कर रहे हैं, तो जो आनंद मिलता है उससे ये कष्ट कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। निमित्तानि विपरीतानि, है ना, निमित्तानि विपरीतानि क्या कहते हैं, जब हमारे आशाओं में निराशा दिख रही, अरे मैं जीतूंगा तो, लेकिन जीत करके भी हार जाऊंगा। क्या कर, एक बड़ा आपने एक फिल्मी डायलॉग चला था, हार करके जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यानी अगर हम भगवान के चरणों में स्वयं को हार जाएं और उनको उनके चरणों में अपने आप को निछावर कर दें, बिछा दें, तो हम हार करके भी भगवान का धाम जीत सकते हैं। और जीत करके भी हार जाएंगे अगर हम स्वयं को मालिक मान करके हम जीत भी गए, और लेकिन उसके बाद अगर हम जीत भी गए, लेकिन अगर उसके बाद हमने अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो हम हार गए, तो हम हार के भी जीत जाएंगे, जीत करके भी हार जाएंगे, है ना। तो जो है कई बार व्यक्ति सोचता है ना, अरे मैं यहाँ पे क्यों हूं, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, पता नहीं किस प्रकार का दुख लग रहा है, कैसा कष्ट प्रतीत हो रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वैसा क्यों लग रहा है। कई बार व्यक्ति ऐसा, मनुष्य ऐसा सोचते हैं। हमारे जो क्यों ऐसा, क्योंकि हम भगवान पर ध्यान हटा करके भौतिक चीजों पे ध्यान लगा देते हैं, है ना। और हम केवल और केवल अपने स्वार्थ के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, मेरा स्वार्थ। अब देखिए जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, आजकल मोदी जी की सरकार चल रही है, तो देखिए मैं किसी पक्ष में तो नहीं हूं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें जो अच्छी लगती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो अच्छी नहीं लगती हैं। तो उदाहरण के तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अच्छा क्या लगता है कि अगर उसका उपयोग लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में डालने के लिए नहीं किया, गवर्नमेंट ने, अगर मोदी जी अपने बैंक अकाउंट में न डाल करके उसको देश की रक्षा सुरक्षा और यहाँ पर जितने, अगर इस देश की प्रगति के लिए वो इसका अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो ठीक है, कर्ज खत्म कर रहे हैं तो ठीक है, करिए, है ना। तो उस दुख में भी क्या है, एक सुख तो मिल रहा है ना कि हाँ चलो कुछ अच्छा होगा। कई लोग इसमें दुखी हो रहे हैं कि मैं अपने, मेरा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हो रहे हैं, लोगों को जो है कुछ लोगों को चीजें, सैलरी वगैरह कुछ तो टीएडीए जो गवर्नमेंट में जानते हैं उनका कम हो रहा है, या उनको किसी लोगों को तो बहुत सी चीजों लोगों को लॉस हो रहा है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरी नौकरी का कोई फायदा नहीं है, इस गवर्नमेंट नौकरी का कोई फायदा नहीं गया, ये बीजेपी सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है। क्यों? क्योंकि मेरी नौकरी में मुझे जो पैसे मिलते थे वो अब नहीं मिल रहे। लोग ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जो अलग अलग लोगों से स्टेटमेंट बोला मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर डाल दिया। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ के प्रति रुचि रखता है ना, तो वो ये भूल जाता है कि वो कौन है, वो क्या है, वो क्यों है ना, ये उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या होता है, इसलिए क्या है, अगर वो परमात्मा में रुचि रखेगा, यानी भगवान कृष्ण में रुचि रखेगा, तो क्या होगा, तो उसका जो है ये भाव बदल जाएगा, उसको फ्रीडम है। जैसे क्या है, पिता ने बोल दिया बच्चे से, बेटा जा करके ये सामान ले आओ। अब जो है पिता ने बच्चे से कोई भी सामान मंगाया, अब उस समय उसको कोई रोड़े में नहीं आ सकता। अब वो जाके सामान ले आता है तो उसको कोई दुख नहीं होगा। मान लीजिए माँ ने बोला कि आज घर में जो है पनीर नहीं बनेगा, जस्ट इमेजिन करिए, लेकिन पिता ने बच्चे को पैसे दे जाकर पनीर लेके आओ। अब बच्चा क्या, अगर पहले जाता माँ के कहने पर चला जाता और वो नहीं बनेगा और नहीं जा रहा मान लीजिए, और माँ ने मना किया, लेकिन बच्चा जाके ले आता, तो मम्मी क्या करती, खूब पिटाई कर देती, है ना, करती कि नहीं। लेकिन अगर पिता ने बोल दिया, उसको ओवरराइड कर दिया कि जाओ बेटा लो पैसे पकड़ो पनीर लेके आ जाओ, तो जो है मम्मी देखेंगी, लेकिन वो जो है उनको पता है कि चूंकि पिता की इच्छा से ऐसा है, इसलिए उसको बच्चे को कुछ नहीं बोलेंगे। ये मैंने उदाहरण दिया, बहुत सिंपल उदाहरण है, इसको समझिए। यानी हम कब ऐसा प्रतीत होता है, यानी जब हम पिता के आदेशों को भूल करके अपनी अच्छानुसार कार्य करते हैं, यानी माँ ने बोला, मना किया और हमने वो कार्य कर दिया, तो क्या होगा, तो हमारी माँ से पिटाई होगी। लेकिन अगर पिता ने उसी चीज के लिए आदेश दे दिया तो क्या होगा, माँ नहीं मारेगी। ये सिंपल सा एक स्टेज सा नियम है। वैसे ही प्रकृति माँ है, प्रकृति कहती है, प्रकृति कभी भी, देखिए माँ कभी ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा क्या हो, कभी भी कष्ट में रहे,
जो प्रकृति माँ है, और जो है जो प्रकृति और पिता कौन है? कृष्ण है। तो अगर प्रकृति कभी ये नहीं कहती है, वो आपको सजा जरूर देगी पिता के कहने पर कि देखो इसने मुझसे विपरीत जाने का प्रयास किया है, तुम इसको पिटाई करो या इसको बंद कर दो कमरे में या कुछ कर दो, तो हम लोग कैद हो गए आकर के। लेकिन वहीं पे अब पिता ने बोला चल बेटा चल आजा गोलोक, तो माँ प्रकृति रोक नहीं पाएगी। रोक पाएगी क्या? नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली पिता को खुश कर दिया। पिता से संबंध अलग हुआ तो माँ डंडे मारेगी, पिता से संबंध जुड़ गया तो माँ सपोर्ट करेगी। यही पूरा जो हमारे घर में है ना, वही इस जगत में है। तो अगर जो है पिता को चाहे मम्मी पापा में कितना झगड़ा हो, लेकिन बेटा अगर पिता को कुछ बोल देगा तो माँ डंडे उठा के मारना शुरू कर देगी। ये बिल्कुल सही बात है। तो जो है कहते हैं, तो नीलम माता जी के अनंत नगर में उत्सव किस दिन होता है? माता जी संडे शाम को आता है, हर रविवार को शाम को 5 बजे से। आज फिर से कोरोना के बाद आज से फिर से शुरू कर रहे हैं, तो शाम को 5 बजे से। तो अगर नीलम माता जी अगर आपको लोकेशन चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो कहते हैं, तो यानी हमें किसकी इच्छा के लिए करना चाहिए? पिता की इच्छा के लिए, भगवान कृष्ण की। तो इस समय अर्जुन की स्थिति क्या है? वो भगवान को भूल गया है और इसलिए उसको आत्मविस्मृत हो गया। जब हम भगवान को भूलते हैं तो हम स्वयं को भूलते हैं, तो ध्यान रखिए। जैसे ही हमने भगवान को भूले वैसे ही हम स्वयं को भूल जाते हैं। कितना जो है कितना स्ट्रेट रूल है, देखिए। जैसे ही हम भगवान को भूलेंगे वैसे ही हम स्वयं को भूल जाएंगे। भगवान को याद रखेंगे तो हम स्वयं को याद रखेंगे। ये लॉजिक समझ आ रहा है ना? आ रहा है तो हरि बोल बोलिए, लिखिए। यानी हम भगवान को भूलेंगे तो हम स्वयं को भूल जाएंगे, भगवान को याद रखेंगे तो हम स्वयं को याद रखेंगे। ये लॉजिक याद रखिएगा, है ना? क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा नियम है। इधर अर्जुन ने क्या किया? इसे भगवान को भूल रहा है, इसलिए उसको विजय में भी शोक दिख रही है। लेकिन विजय में शोक तो नहीं दिखना चाहिए ना, विजय में तो खुशी दिखनी चाहिए। ठीक है, राधा माता जी ने बोला गया सब ठीक है, यानी आप लोग समझ गए चीज को कि भगवान को भूलने का मतलब स्वयं को भूलना है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को भूल गए तो हमारे हृदय में क्या होगा? एक अहंकार रूपी आवरण आ जाएगा, और अहंकार हमें अपने आप को जानने ही नहीं देता कभी कि हम कौन है। कितना खतरनाक है सोचिए। ये जो हम भौतिक जगत ऐसा बनाया गया है कि हम स्वयं को आज तक नहीं जान पाते। नहीं जान, कई लोग पूछे नहीं जान पाते। चलिए चलते हैं फिर 1.31 में, अगले श्लोक में कहते हैं, न चाश्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। जब आप हॉस्पिटल में होते हैं या कहीं ऐसी जगह जहां पे लगता है कि अब तो मेरा समय आ गया, अब मैं बचूंगा नहीं, या कभी ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा होता है उस स्थिति में, तो क्या होता है? उसको लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या मिलेगा, क्या है। हॉस्पिटल में रहकर के इंसान को पूछने में लगता है अब मुझे क्या चाहिए, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मैं क्या करूंगा पैसे कमा करके, ये पैसा मेरे लिए क्या है, कुछ नहीं है, मैं बचा रहा हूं बस, ये क्या है। ऐसा व्यक्ति लगातार सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसने उस चीज को अनुभव कर लिया होता है जो उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होता, इसलिए उसका क्षणिक वैराग्य हो जाता है। तो जब हॉस्पिटल से बाहर आता है तो क्या होता है? पुनः अपने उन्हीं कर्मों में लग जाता है। तब उससे बोलिए भाई साहब थोड़ा सा पैसा दे दो गौओं के लिए, गाय हमारी जो है भूखी प्यासी हैं, उनको थोड़ा सा चारा मिल जाएगा, 400 गाय इस समय पल रही हैं, उनको थोड़ा सा पैसा दे दो। तो कहेगा भैया पैसा नहीं है मेरे पास। और जब हॉस्पिटल गया तो वहां पे 4 लाख रुपए लग गए, वो लग जाते हैं पैसा, यानी 4000 रुपए या 400 रुपए देने के लिए पैसे हमारे पास नहीं होते दान के लिए, और हमारे शरीर में 4 लाख लगेगा तो हम कर्जा लेके लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान हमारे, देखिए वो एक बात ध्यान सोचिए हमेशा, सिंपल लॉजिक समझिए। हम या तो वो पैसा है ना, या तो पैसा, देखिए हमारे पास से मान लीजिए 1 लाख खर्च होना है, ये हमें तय है कि 1 लाख खर्च होना है, तो वो 1 लाख खर्च होगा। अब उसमें हम 1 लाख को हम चाहे यहां खर्च कर दें, चाहे वहां खर्च कर दें, चाहे वहां खर्च कर दें, वो खर्च होना ही होना है ना।
तो मान लीजिए हमने कंजूसी से बिल्कुल दान वगैरह नहीं किया, हर जगह से बचा कर रख लिया। देखिए जैसे मैं वृंदावन गया था, ब्रज की पूरा दर्शन किया, तो मैं अपने साथ 10,000 रुपए लेके जाता हूँ, या तो नहीं जाता वृंदावन धाम में जाता, या तो 10,000 अपने हाथ में लेके जाता हूँ। किस लिए? वहां दान करने के लिए। अलग, क्योंकि वहां के जो पंडित है, वहां के जो ब्राह्मण है, वहां के जो लोग हैं, जो पुजारी हैं, उनका क्या आय है? वो नौकरी नहीं करते ना। लोग कहते पुजारी लूट रहे हैं, पांडा लूट रहे हैं। अरे लूट नहीं रहे, वो आपके भगवान के, अगर आप मंदिर गए और आपको भगवान वहां मंदिर खुला हुआ मिल गया, वहां भगवान के दर्शन हो गए, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? क्या आप जाके सेवा करते हैं? नहीं नहीं, पुजारी सेवा करते हैं वहां पर। और अगर वहां पे उनको पैसे नहीं मिले और वो भी नौकरी छोड़, वो सब मंदिर बंद करके नौकरी की तरह से 12-12 हजार 15-15 हजार की नौकरी के लिए बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई भाग गए, तो हमारे भगवान की सेवा कौन करेगा वहां पर? तो जब आप कभी वृंदावन जाएंगे और आपको दर्शन होगा वहां पर, तो दर्शन किसके करेंगे? अगर वहां पे दर्शन की सफाई करने वाले, मंदिर मार्जन करने वाले, उनकी सेवा करने वाले ही नहीं होंगे वहां पर। तो वहां पे जाइए धाम में तो लूटने के लिए जाइए। ये मत सोचिए उसने मुझे 100 रुपए लूट लिया, क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा वहीं बचाता है। मतलब 1 लाख खर्च करके पूरा परिवार लेकर के धाम जाएगा, और वहां पे एक साधु ने कह दिया मुझे चाय पिला दो या दूध पिला दो, भूख लगी एक समोसा खिला दो, तो मुझसे समोसा नहीं खिलाए। मंदिर में जाकर पुजारी मुझसे कहेगा कि 100 रुपए दे दो, तो हम उसको 100 रुपए नहीं दे जाएंगे, हम उससे कहेंगे 1 रुपए लो, हम 2 रुपए देंगे उसको, 10 रुपए देंगे, हम वहीं सारी बचत कर लेंगे। धाम में जाकर के किसी भी कीमत में अपने आप को कंगाल करके आना आइए, क्योंकि वो पैसा जो आपने वहां खर्च किया है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो पैसा भगवान अपने पास रखते नहीं है। भगवान वानर की तरह काम करते हैं यहाँ पर। आपका चश्मा लेके बंदा अगर भाग गया, तो और आप उसको 10 रुपए की फ्रूटी देते तो 3,000 का चश्मा फेंक देता है वापस को। ध्यान रखिए, मोबाइल लेके भाग गया तो 10 रुपए की फ्रूटी लेके 20,000 का मोबाइल फेंक देता है आपके हाथ में। वैसे ही भगवान के मंदिर में अगर आप 100 रुपए फेंक के आते तो भगवान वापस 10,000 रुपए फेंकते हैं आपके हाथ में। ये हमें पता नहीं होता, एक्चुअली दान की महिमा हमें पता नहीं। हमें दान करना चाहिए, गैयों को खिलाना चाहिए। हमें जो है, हम सोचते यही सारा पैसा बचा ले, सारा पैसा हम यही बचा लेते, 2 रुपए 1 रुपए 5 रुपए सिक्के लेके जाते हैं धाम में। 10-10 के नोट लेके जाइए ना, क्या प्रॉब्लम, फर्क पड़ता है दान देने के लिए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि हर गेरुआ कलर पहने वाला व्यक्ति दान लेने के लायक है। हो सकता है दारू पी करके आ जाए आपके पास में, तो थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए, दारू पी के आए, ऐसा नहीं बोलना है। कोई ब्रज धाम में तो आप ऐसे बोल नहीं सकते, हाथ जोड़ के निकल जाइए, दान मत दीजिए। मंदिरों में जाइए, वहां हर जगह 50, 100, 100, 10, 20, 50, 5, 10, 20 अपने श्रद्धा और साथ में अपना बजट के हिसाब से आप एक बजट लेके जाइए। जैसे कोई 2,000 रुपए लेके जाइए धाम में, सोचिए मुझे 2,000 खर्च करने हैं, वहां देने हैं, चाहे किसी को खिलाने पिलाने में, मंदिरों में कुछ भी करके मुझे 2,000 खर्च करने हैं, 5,000 खर्च करने। मैंने बना रखा अपना 10,000 बना रखा कि जब भी आता हूँ 10,000 लेके जाता हूँ। तो ऐसा जो है अपने हिसाब से अपना बनाइए, है ना। और तब जाकर जो आप लगाते हैं, देखिए आज तक हमारी गौशाला में बहुत पैसे हमारे गए, हर जगह बहुत। अभी क्या है, फिर से देखिए समय आ रहा है, गायों को हम हर साल हमारा क्या होता है, चारा की व्यवस्था होती है। वो चारा की व्यवस्था आती है और हर साल 6 महीने के लिए गायों को 400 गौवंश इस समय, वो उनकी व्यवस्था हम जो है करते हैं, हर साल करते हैं। तो हर 6-6 महीने में करते हैं। तो फिर से चारे के लिए एक ट्रॉली चारा 5-6 हजार का आता है, और इसे सैकड़ों, मतलब कुछ समझ लीजिए 400-500 ट्रॉली चारा को हमें स्टॉक रखना पड़ता है। तो वो जो है, वो कई भक्त लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को सपोर्ट करना हो तो बताइएगा। थोड़ा देखिए, सब 4-5 हजार में 6 महीने में एक बार 4-5 हजार देने में अपना कुछ नहीं जाता। जब कहीं पिज्जा खाने जाते 2-3 हजार पिज्जा खा के आ जाते हैं, वहीं आपके एक ट्रॉली में कई गायें एक दिन में खाना खाएंगी, है ना। तो सोचिए कितना आपके लिए पुण्य मिलेगा। ठीक है, मैं तो ऐसा, और एक चीज और कर सकते हैं, हर दिन एक गुल्लक बनाइए। एक माता जी ऐसे करती हैं, वो ऐसा ही करती है, हमेशा गुल्लक पे जब खाना खाती है ना, तो 5-7 रुपए 10 रुपए डाल देती है उसमें। कहती जब मैं खाना खाती हूँ तो एक रोटी 10 रुपए की मान करके एक रोटी का पैसा गुल्लक में डाल देते हैं। और जब उसमें पैसा 1 महीना 2 महीना जितना भी होता है, तो क्या करते हैं कि उस गुल्लक के पैसे को निकाल करके हमको कहते हैं प्रभु जी गौशाला में देना है, तो हमें देती हैं और हम गौशाला को दे देते हैं। तो ऐसा फिर उनको हम रिसीट दे देते हैं गौशाला की, जिससे वो अपना ATG वगैरह सर्टिफिकेट ATG वगैरह प्राप्त कर सकती हैं। तो जो है ये पूरा प्रोसेस रहता है।
तो आप लोग कैसे कैसे भी करना चाहें, केवल क्या है, दान देने की महिमा है। इस समय अक्टूबर नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है हमारे हम लोगों की गौशाला के लिए। तो जितना हो सके गायों को खिलाइए। गायों को खिलाने से अपना पेट कम नहीं होगा, चिंता ना करिए है ना, पेट भरता है अपना, बहुत पेट भरता है। गाय माँ है, माँ को खिलाने से बच्चों का पेट खाली तो ना होता है, भरता है। तो जो है इधर क्या कहता है कि मैं अब वध ना, कहता है ये इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना उसमें किसी प्रकार का विजय या राज्य की इच्छा रखता हूं। अब तुम यानी अर्जुन इच्छा नहीं रख रहा, अर्जुन इच्छा नहीं रखी, लेकिन भगवान की तो इच्छा है ना। तो अगर अर्जुन ने इच्छा नहीं करी है लेकिन भगवान की इच्छा है तो क्या करना चाहिए, मेरी इच्छा हो ना हो, भगवान की इच्छा है ना, तो मुझे कार्य करना चाहिए। मनुष्य का जो है जो स्वार्थ है वो किस चीज में निहित है, हमें केवल मेरा अच्छा कपड़ा मिले, मुझे अच्छा खाने को मिले, ये नहीं, भगवान को क्या चाहिए ये भी मुझे पता होना चाहिए, है ना। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में। तो सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति हम अगर आकर्षित ये सोच के होता ना कि हाँ मैं शादी कर लूंगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बच्चे हो जाएंगे तो बहुत प्रसन्नता मिलेगी, या मेरे किसी से दोस्ती संबंध जुड़ जाएगा तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, हम लगातार मन में विचार करते रहते हैं, है ना, कि हमको ये इससे मिलेगा उससे मिलेगा। लेकिन क्या होता है, हम इस जो ऐसी जो देहात्म बुद्धि है ना, उसके कारण भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं, है ना, कि हमको ये जो कारण जो भौतिक सुख भी मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है। भगवान कहते हैं कि सारा सुख सारा दुख सबका कारण तो मैं हूं, यानी तुम्हारे पास दुख अगर स्वयं आ रहा है तो सुख भी स्वयं आ रहा है, तो उसका कारण मैं हूं, है ना। तो जो है अब अर्जुन क्या है, एक क्षत्रिय है, लेकिन क्षत्रिय होने की वजह है तब भी वो क्या भूल गया, धर्म भूल गया है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, है ना, और युद्ध क्यों करना, ताकि वो रक्षा कर सके, और किसकी आज्ञा से, केवल भगवान कृष्ण की आज्ञा से। और यानी इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। दो प्रकार के मनुष्य कौन कौन, पहला मनुष्य है क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, और दूसरा कौन है, सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। तो सन्यासी और क्षत्रिय, देखिए इनको एक पद में रख दिया प्रभुपाद जी ने। मतलब क्षत्रिय कौन है, जो भगवान कृष्ण की आज्ञा से ही मरता है, हाँ युद्ध में मरता है, मुझे जो है युद्ध करना है, आपने बोला तो मैं युद्ध करूंगा। अब कहेंगे अभी तो आजकल जो क्षत्रिय उनके पास तो कृष्ण है नहीं, हाँ आजकल कृष्ण नहीं है ना, लेकिन जो क्षत्रिय धर्म है वो तो पता है ना। और भगवान कृष्ण क्षत्रिय धर्म को कहते हैं कि अपना धर्म बचा के रखो। भगवान आगे कहते हैं श्लोकों में कि दूसरों का कर्म करने से अच्छा है कि तुम अपना कर्म करो, है ना। ब्राह्मण किसमें लग गए हैं, वैश्य का कार्य कर रहे हैं, शूद्र का कार्य कर रहे हैं, शूद्र ब्राह्मण बन गया है। कई जगह पूजा कराते हैं लोग, आते हैं, जो शूद्र है उसका अपना नाम छुपा लिया, जाति छुपा ली, तिलक लगा लिया, चोटी रख ली और बन गया ब्राह्मण, और पहुंच गया जाकर के जो है उसमें पूजा कराने के लिए, और पूजा कराता है ना, खुद 100 काम पाप करेगा और लास्ट में जाकर के देखिए पूजा मतलब समझते हैं क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं तो वैष्णव ब्राह्मण को बुलाइए आप, क्योंकि जो साधारण ब्राह्मण जैसे बुला लेते ना कि हाँ कोई भी जो पूजा कराने वाले को बुला लिया बिना उसके बारे में जाने, तो उसके जो कर्म फल हैं वो आपको दे के जाता है। अब सोचिए अगर उसने पुण्य कर्म किए और आपके घर में पूजा करा के गया तो उसके पुण्य आपको मिल जाते हैं। अगर वो पाप कर्म कर रहा है और आपके घर में पूजा करा के गया तो उसके पाप भी मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम ऐसा पंडित बुला रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अयोग्य पंडित है, अयोग्य ब्राह्मण है, यानी ऐसा ब्राह्मण जो ब्राह्मण बन तो गया लेकिन ब्राह्मण है नहीं, वो कुछ भी था और कुछ भी बन गया वो, तो इसका मतलब है कि 10 मंत्र पढ़ने से, देखिए कहते हैं ना कि दूध कितना भी गाय का हो लेकिन अगर सर्प ने मुंह लगा दिया है तो जहरीला हो जाता है, ठीक है। वैसे ही मंत्र कितने भी पावरफुल हो लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकल रहे हैं जो पापी है, जो खुद तो चिकन मटन गाय का मांस, एक वीडियो आया था उसमें एक छोटा सा क्लिप था जिसमें एक गेरुआ वस्त्र पहने
और ऐसे तिलक लगाए गाय का मांस खा रहा था। उससे पूछा कि तुम तो गेरुआ कपड़े पहने, तुम तो पंडित दिख रहे हो, पंडित जैसे दिख रहे हो, तो तुम जो है ये गाय का मांस क्यों खा रहे हो? गाय तो माँ है। कहता गाय कोई माँ नहीं है। ऐसे तो जब हम लोग ही अपने गायों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन, गाय को माँ नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति दान के योग्य नहीं है। गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति पूजा कराने के योग्य नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति पर पूर्ण भरोसा करने के पहले हमेशा खंगाल लीजिए कि बंदा है कौन वो जो आपकी पूजा कराने के लिए आया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि अपने पाप के फलों को भी आपको डोनेट करके चला जाए। जो गृहस्थ होते हैं वो पूजा नहीं करते हैं कायदे से, तो क्या करते हैं, बीच बीच में पंडित बुलाते हैं। पंडित क्या करता है, जितना उसने अपने पुण्य कर्म, अपने तपस्या से, अपने जप से, अपने पूजा से, अपनी भक्ति से जो पुण्य कर्म बटोरे होते हैं, जब गृहस्थ क्या जाता है तो उनको दे करके चला जाता है और फिर अपना भरता रहता है। और गृहस्थियों जो गृहस्थ लोग हैं उनके पास ऐसे पुण्य कर्म मिल जाते हैं उनको, है ना? लेकिन वहीं पे अगर वो जो है क्या करेगा, अगर वहीं पर वो पाप कर रहा है तो जितने पाप है वो दे के चला जाता है। तो गृहस्थ लोग तो वैसे ही पूजा नहीं करते और गलत व्यक्ति से पूजा करा के उनको और क्या होते हैं, पाप कर्म उनके भर जाते हैं। इसलिए वैष्णव ब्राह्मण ढूंढिए, कभी भी गलत ब्राह्मण, गलत व्यक्ति से अपने घर में पूजा मत कराइए। अननोन आदमी से तो कराइए मत, या कराइए तो उसको पहले जान लीजिए अच्छे से, उसके बारे में फीडबैक लीजिए, तब कराइए। कौन है, कहाँ रहता है, कैसे क्या, सब जानने के बाद ही कराइए, ठीक है? तो जो है फिर कहते हैं कि अब अर्जुन क्या यहाँ पे कर रहा है, वो अपने तो संबंधियों को छोड़ दीजिए, वो शत्रुओं को मारने से भी विमुख हो रहा था। संबंधियों के लिए नहीं बोल रहा, अब वो कह रहा मैं शत्रुओं को भी नहीं मारना चाहता, मैं तो जंगल जाना चाहता हूँ। अब वो लड़ने का इच्छुक ही नहीं रह गया, है ना? तो जो है अब उसको क्या है, वो कह रहा है मैं एकांत जाना चाहता हूँ, वन में जाना चाहता हूँ। तो बताइए क्या वन में जाकर के वो क्या अपने कार्य को छोड़ देगा? नहीं। जैसे कोई शेर अटैक करने आएगा सीधा अपना धनुष रख के मार देगा, क्योंकि क्षत्रिय खून है ना, वो ब्राह्मण की तरह से बैठा तो ना रहेगा, वो क्षत्रिय खून है। तो भगवान कहते हैं आगे भगवत गीता में बहुत श्लोक मिलेंगे, भगवान कहते हैं तुमको लगता है कि तुम अपने कर्म छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ पाओगे अर्जुन, तुम तो करोगे ही करोगे, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए अपने कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जो है अर्जुन इस समय क्या स्थिति है उसकी, कहता है नहीं केशव नहीं, अब मेरे पास जो है मुझे क्या करना है ना, मुझे राज्य चाहिए। अब वो बिल्कुल भटक गया है, वो क्या कह रहा है कि मैं अपनों को मार करके अब मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, क्षणिक वैराग्य है। और क्षणिक वैराग्य सबसे ज्यादा जहरीला होता है, ध्यान रखिए। क्षणिक वैराग्य बहुत जहरीला होता है, क्योंकि थोड़े समय का वैराग्य है, बहुत थोड़े समय का वैराग्य। हमें जो है, हमको वो जो थोड़े समय का वैराग्य ना, उसमें बहुत कसमें, वादे, प्यार, वफा सब कुछ कर लेते हैं। छोटे समय के लिए अगर हम भौतिक किसी से प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए, तुरंत हम उसको कमिट कर देते हैं, अरे तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, तुम जब मुझसे जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। जैसे महाराज दशरथ जी ने कैकेयी से बोल दिया, है ना? अब आज जो पछता रहे, तो क्या हो, जो क्षणिक वैराग्य है ना, वो क्षणिक समय के सुख या क्षणिक समय की प्रसन्नता या क्षणिक समय का वैराग्य बहुत जहरीला होता है। उस समय कंट्रोल करके बोलिए। कई लोग फंस जाते कमिट करके, फिर लोग उसको उल्टा बोलते रहते, तुमने बोला था ना, तुमने बोला था, तुम कर नहीं रहे हो, है ना? तुमने बोला था, तुम कर नहीं रहे हो, ऐसे बहुत सुनने को मिलेगा। इसलिए क्या है, भगवान के अलावा कोई दूसरा कार्य में कमिटमेंट मत करिए। गुरु को धारण कीजिए, कोई गुरु आपको सही दिशा बतलाएगा। साथ में क्या है, आप भगवान से संबंध जानने का पूर्ण प्रयास करिए, क्योंकि भगवान के अलावा दूसरा हमारा सगा संबंधी कोई नहीं है। और क्या है, भगवान को जानेंगे तो आप स्वयं को जान पाएंगे। आत्मशुद्धि के लिए भी भगवान का भजन कीर्तन, ये कथाएं बहुत जरूरी हैं। बीच में कथाएं बहुत विराम हुई हैं, बहुत रुकावटें आई हैं, क्योंकि अभी त्योहार आ गया और पहले हम चले गए, उसके लिए क्षमा कीजिए। ये कथाएं अब रुकावट में शायद नहीं आ पाएंगी। अगर भगवान की इच्छा रही तो हम सुबह हमें अब रुकावट नहीं मिलनी चाहिए। हम नियमित कथाओं को वैसे ही करेंगे। हम देख रहे थे काफी लोग जुड़ने लगे थे इसमें, लेकिन वो 10-15 दिन की जो रुकावट आई उसकी वजह से लगता है लोग भूल गए। फिर से लोगों तक पहुंचना है, सबको बताइए। कथाएं पुनः स्टार्ट हो गई हैं, है ना? और शाम को जो है हमने यहाँ पर
हमारे जो लोग बेंगलोर वासी हैं, जो बेंगलोर में हैं इस समय, बेंगलोर में रहकर कथा सुन रहे हैं, उनके लिए ये सूचना है कि आज इसे जो है आमने सामने प्रोग्राम हुआ करेगा, लाइव प्रोग्राम होंगे, मतलब सेंटर में, जो हम लोग सेंटर ओपन किया है अनंत नगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में। तो अनंत नगर में जो है खुल गया है सेंटर, और वहां पे आज से कथा कीर्तन प्रसादम भजन बहुत कुछ होने वाला है, फुल मस्ती मोड में रहेंगे। ठीक है, चलिए हरि बोल। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर से कल के दिन भागवत कथा में। हरि बोल।